So we are into solving electric circuits, DC circuits. DC electric circuits. Last time we saw that the circuits are made of the cells of the battery. And then, there are thick connecting wires. And we have the resistance wires. We can have key, close key or open key. We can have a meter in it. We may have voltmeter connected across some resistor, right? And to solve the circuits, we need what is the mother law? V is equal to IR, Ohm's law, where V is the potential drop. V is the potential difference where? Potential difference across a resistor, right? Potential difference between the terminals of a resistance. V is equal to IR किसके ऊपर लगता है ये? किसके ऊपर लगता है जी? It applies on an R. जैसे F is equal to MA किस पे लगता है? क्यों जी? It applies on a mass. है just like this, right? Just for analogy purpose, comparison purpose, right? इसके अलावा इसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट लॉ क्या यूज होते हैं? तीन लॉ से हम सर्किट सॉल्व करेंगे मेनली, राइट? एक तो V इज इक्वल टू आई आर विच इज अप्लाई टू रेजिस्टर, और दूसरा KCL हमने पिछली बार डिस्कस किया था। KCL क्या है? किरचॉफ करंट लॉ, विच इज, और जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसको, विच इज जस्ट ए स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मान ली यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2 करंट आ रहा है, और यहां से I3 I4 करंट जा रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? जंक्शन, राइट? तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नो? Coulomb per second of which is coming in is equal to coulomb per second going out. Every second, it is a steady state. Each and every instant of time, the incoming charge is equal to outgoing charge. There is no surplus here, there is no deficit here. Right? ये हमने डिस्कस किया था। I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. फिर हमने कहा था तीसरा क्या है? लूप लॉ और द KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या है जी? इसको हमने थोड़ा सा करना था, फिर इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? ये इस तरीके की बात है जैसे हम कहें कि इन ए लूप, इन ए लूप, if we move around the loop, if we move around the loop and come back to the starting point, and come back to where we started from, come back to where we started from, right? The net change in potential is, the net change in potential is zero. Net change in potential is zero. It is like this. Suppose you have a you are going from one place to another. Heights के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं। Heights. Suppose you start from Delhi. You go to Dehradun. Right? Maybe you go to Mussoorie. Maybe you go to Saharanpur. And then you come back to Delhi. Right? When you go to Delhi to Dehradun, you gain some height. ज़्यादा altitude पे है ना दिल्ली से देहरादून, तो मान लो you gain H1 height. When you go from Dehradun to Mussoorie, what happens? Are you gaining height? You are going to higher mountain, right? Mussoorie is a higher mountain. So you gain height plus H2. When you go from Mussoorie to Saharanpur, you are coming down, right? You lose height, let's say minus H3.
And when Saharanpur, Delhi, maybe you lose minus H4, right? But you have come to the same height, right? So what does it mean? The gains in heights plus the loss in heights, the net result is zero. Does it make sense? Right? Similarly, when you go in the direction of current in a resistor, this is the direction of current. This is point A, this is point B. The two are the ends of the resistor. It is a R ohm resistance and I ampere current is flowing through it. Then how much is the potential drop here? V कितना होगा इसके अंदर ड्रॉप? It will be I into R, which is the Ohm's law, right? ये ठीक बात है. तो VA से VB करंट की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्या होता है? वी लूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी लूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो VA से VB में जाएंगे तो क्या होगा? वी आर लूजिंग पोटेंशियल. A टू B में क्या हो रहा है? वी आर लूजिंग पोटेंशियल. हाउ मच? माइनस IR. Loss in potential is higher, the change in potential is minus IR. It is the change in potential. As I go from here to, if I go from B to A, what happens? B to A में जाएंगे क्या तो क्या होगा? B से A जा रहे हैं तो we gain plus IR. जैसे आप लोअर हाइट से हायर हाइट में जाते हैं तो you gain plus H. If you go from return, you go from first floor to fifth floor, you gain plus 4H if H is the height of one floor. You come back from fifth floor to first floor, you gain minus 4H, right? You lose. तो you, ठीक है ध्रुव, बात समझ में आ रही है, राइट? तो रेजिस्टर में क्या होता है? पोटेंशियल गेन होता है, पोटेंशियल लॉस होता है. पोटेंशियल गेन कब होता है? इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट इस तरीके से था, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएं तो वी गेन पोटेंशियल. वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी लूज पोटेंशियल. ध्यान से समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात, राइट? व्हाट अबाउट ए बैटरी? सपोज दिस इज ए 3 volt बैटरी. दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. I go to A to B, what do I do? यहां पर हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है. What is the change? Minus 3B. If I go B to A, what happens? Plus 3B. ठीक है? Let us solve. How many loops are there? Let's make a figure. इसमें भी यहां पर एक हम क्या देख रहे हैं, क्या बनाया इसके अंदर? 1 2 3 रेजिस्टेंस है और 2 बैटरी है, राइट? ऐसा एक हमने सर्किट बनाया है, ऐसा हमने एक सर्किट बनाया है, ठीक है जी. इनको मैं पॉइंट का नाम रख दूं, मान लो इस पॉइंट का नाम A रख दूं, इस पॉइंट का नाम B रख दूं, इसका नाम मान लीजिए C रख दूं, इस पॉइंट का नाम D रख दूं. है ना? ये क्या है? कुछ पॉइंट्स के हमने नाम रख दिए हैं. कोई इसमें मुझे बताओ, इनके इनकी भी रख दूं. मान लो दिस इज E1 बैटरी, E1 वोल्ट. दिस इज E2 वोल्ट. लेट्स से दिस R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, दिस इज R3 रेजिस्टेंस. I can give values also. I can give value also. Let's say it is 4 ohm. Let's say this 6 volt. Let's say this is 3 volt. Let's say this is 2 ohm. And let's say this is 1 ohm. ठीक है जी. ये क्या बनाया है, क्या कहेंगे इसको हम? क्या कहेंगे? इट इज ए सर्किट. इट इज ए इलेक्ट्रिक डीसी सर्किट. इट इज ए इलेक्ट्रिक डीसी सर्किट. ठीक बात है.
इसको सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय सॉल्विंग ए सर्किट? व्हाट डू मीन बाय सॉल्विंग ए सर्किट? कि मैं बता सकूं सब जगह करंट क्या है। यहां पर मान लीजिए कोई I1 करंट है, मैं उसकी वैल्यू बता सकूं। यहां पर मान लीजिए कोई I2 करंट है, मैं उसकी वैल्यू बता सकूं। यहां पर करंट कितना है ये बता सकूं। किसी भी रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप बता सकूं। राइट? तो अगर मैं ये सब बता सकता हूं तो आई हैव सॉल्व द सर्किट, आई हैव सॉल्व द सर्किट, ये मतलब हुआ ना सर्किट सॉल्व करने का। राइट? ओके। मुझे बताओ इस सर्किट में कितने नोड, कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको? इससे दोस्ती करें थोड़ी सी इसके साथ। इसमें कितने जंक्शन दिख रहे हैं हमें? बोलो। हम्म। जंक्शन क्या होता है? जहां पर कम से कम तीन ऐसे वायर मिल रही हो या चार मिल रही हो, ऐसा कुछ। अगर कोई वायर सीधी जा रही है तो जंक्शन तो इसमें है नहीं। जंक्शन में क्या है? करंट कैन कम इन, जैसे कोई एक्सप्रेस वे जाती है हमारी, एक्सप्रेस वे में जहां पर एक्सिट होगी, या फिर मान लीजिए कहीं पर एंट्री होगी, तो ये जगह क्या कहलाएंगी? जंक्शन ही हो गए ना यहाँ पर। यहाँ पर करंट की वैल्यू बदलेगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि यहाँ जितना आ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ यहाँ चली जाएंगी तो यहाँ कम हो जाएंगी आगे। यहाँ जितनी जा रही है यहाँ से आ जाएंगी तो बढ़ जाएंगी। आ रही बात समझ में? इसमें कितने जंक्शन है? बोलो। कहाँ कौन जंक्शन है इसमें? दो जंक्शन है। दो जंक्शन है, कौन कौन से? C and A। या देर आर टू जंक्शन। देर आर सी इज जंक्शन, देर इज ए जंक्शन। रेजिस्टर्स कितने हैं? तीन। तीन। R1 R2 R3। सेल्स कितने हैं या बैटरीज? दो। दो। लूप्स कितने हैं इसके अंदर? दो। लूप कितने बना सकते? लूप मतलब एनी क्लोज पाथ। एनी क्लोज पाथ कितने बन रहे हैं बताओ इसमें? तीन। तीन बन रहे हैं। कैन वी तीन। राइट? कैन वी राइट विच वन? एक ये लूप है, इसका मैं क्या नाम लिख सकता हूं? B C A B। BCAB। कुछ जरूरी है बी से स्टार्ट करना? नहीं। नहीं, किसी लूप में तो कोई भी सारे पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप बी से स्टार्ट किया तो बी पर ही फिनिश करना पड़ेगा। तो आपने अच्छा बनाया है BCAB। अगर मैं ए से स्टार्ट करता तो क्या बनाता? ABCA। ABCA। और मैं ऐसे भी कर सकता था, ACBA भी कर सकता था। तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे क्लॉकवाइज ही बनाना है, आई कैन मेक एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। मेक सेंस? और कौन सा लूप है इसमें? और कौन सा लूप है? ACDA। ACDA। ठीक है। और कौन सा लूप है जी? BCDB। BCDAB। BCDA। ऐसे इसके अंदर तीन लूप इसमें बन गए हैं। ठीक है। जंक्शन पे हम क्या कर सकते हैं? KCL लगा सकते हैं। जंक्शन पे हम KCL लगा सकते हैं, और लूप में हम KVL लगाएंगे जी। है जी। और रेजिस्टेंस में हम ओम्स लॉ लगाएंगे। यही तो गेम है जी। रेजिस्टेंस पे क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ। जंक्शन पे क्या लगाएंगे? KCL। और लूप में क्या लगाएंगे? KVL। ठीक है, सिस्टमेटिकली समझ रहे हैं ना हम? सिस्टमेटिकली समझेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट? इसको मिटा दूं मैं? सिस्टमेटिकली समझेंगे गाइस, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताओ, यहां पर मैं क्या, अगर मैं KCL लगाऊं, फिगर के अंदर ही लगा देते हैं हम KCL की अलग से इक्वेशन नहीं बनाते। मैंने यहां पर I1 करंट लिया, मैंने यहां पर I2 करंट किया। ऐसा क्यों लिया? मैंने देखा यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से जनरली करंट निकलेगा, यहां भी पॉजिटिव करंट निकलेगा। तो बताओ यहां करंट कितना हो जाएगा इसमें? R2 में कितना करंट हो जाएगा? इनकमिंग करंट है I1 I2। I1 + I। राइट? तो यहां कितना करंट जाएगा? I1 + I2 ऐसा जाएगा कि नहीं? ठीक है जी। अब यहां से I1 + I2 आया, ये हमने C पर लगाया, फिर A पे क्या होने वाला है? I1 + I2 आया, इसमें से I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया।
तो ये I1 है, जो कि हम पहले भी देख रहे हैं। यहां पर तो बीच में की जंक्शन नहीं है, तो करंट सेम ही होने वाला है सारे में, I1 इधर होने वाला है। यहां पर कितना जा रहा है? I2। और यहां से I2 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 ऐसे करके जा रहे हैं। ये ठीक हो गया? ऑल राइट। नाउ कैन वी मेक द लूप लॉ? लूप लॉ बनाएंगे, 3 लूप है ना हमारे पास, तो 2 के लिए कम से कम बनाए। हमारे अननोन्स कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ अननोन्स। इस फिगर में अननोन्स कितने हैं? करंट के अननोन देख लो, कितने अननोन्स है करंट के? 2, राइट। कौन कौन से? एक I1 और एक I2। 2 अननोन सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? तो 2 इक्वेशन चाहिए। हमारे पास तो 3 लूप है। तो उससे मजेदार बात क्या है, 2 लूप से 2 इक्वेशन बना सकते हैं। तीसरे लूप से जो इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी ए डिपेंडेंट इक्वेशन, दैट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी तब क्या होगा? फिर तो सोल्यूशन निकलेगी नहीं, है ना। 2 के लिए एग्जैक्टली 2 चाहिए। तीसरी डिपेंडेंट है, वो वेरिफिकेशन के काम आ जाती है। तो चलो हम बना के कोशिश करते हैं। लेट अस मेक द इक्वेशन फॉर द लूप ए बी सी ए। ए बी सी ए, बताओ क्या होगा? हम मुझे क्या करना है, ए से बी पर जाना है, बी से फिर सी पे जाना है, और सी से फिर ए देखना है। एंड आई हैव टू ट्रैक दी पोटेंशियल चेंजेस, आई हैव टू ट्रैक द चेंजेस इन दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंजेस, चेंजेस क्या होता है? अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्लस में आएगी चेंज, पोटेंशियल घटेगा तो माइनस में आएगी चेंज, ठीक बात है। तो बताओ ए से बी जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल विल इंक्रीज बाई 6 वोल्ट। इज इट फाइन? तो +6। इसके बाद यहां से यहां तो सेम पोटेंशियल है, कनेक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल चेंज होता नहीं। फिर यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इट विल फॉल बिकॉज आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये इक्वेशन बनानी सीखनी आज, किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनानी, लूप लॉ। क्या हो जाएगा? इसमें कितना ड्रॉप है? I1 × R1, राइट। तो यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल भी डिक्रीज बाई I1 × R1। R1 तो 4 है, I1 तो आई लिखा है, तो कितना हो जाएगा? -4I1 है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। -4I। बात समझ में आई? इसके बाद यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? बोलो। 2 रेजिस्टेंस है, I1 + I2 करंट है, एंड वी आर गोइंग I1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वी लूज पोटेंशियल और गेन पोटेंशियल? वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट लाइक दिस। lose potential. लूज पोटेंशियल, हाउ मच पोटेंशियल विल वी लूज? I1 plus I2 into 2. I1 + I2 × 2, -2 × I1 + I2। अब कहाँ पहुंच गए हम तो ए पर ही पहुंच गए, तो ये सब चेंजेस मिला के क्या आना चाहिए? 0। 0. ये ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दें कुछ हम, क्या हो जाएगा जी? 6 - 4I1 -2I1 -6I1 लिख दो। उसके बाद -2I2, राइट। ऐसा हुआ। 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 = 3I1 + I2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इज इट फेयर डील? ये माइनस टर्म्स को उधर ले गया, तो 3 = 3I1 + I2। आर यू हैप्पी विद दिस? इज इट फाइन? दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? लेट अस मेक सम अदर लूप। लेट अस मेक दिस ACDA। बोलो। ए से हम सी जा रहे हैं, अब क्या होगा? जब सी से ए गए थे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था, अब क्या होगा? आई एम गोइंग Increase. अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए रजिस्टर, तो आई एम गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू Higher हायर potential. पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा? आई गेन पोटेंशियल, तो +2 × I1 + I2। डज इट मेक सेंस? उसके बाद क्या होगा? आई एम गोइंग हेयर, ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल है कनेक्टिंग वायर, तो उसके बाद यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या होगा? ये 3 वोल्ट की बैटरी है। आई एम गोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कितना लूज करूंगा मैं? आई लूज 3।
समझ में आ रहा है? यस, नो? यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? अब देखो, करंट तो इस तरफ था, तो मैं कैसे जा रहा हूं? करंट के अपोजिट, है ना? ऐसे घूम रहे हैं हम, ऐसे बनाया हमने लूप, ACDA, राइट? क्लॉकवाइज लूप बनाया है। तुम नीचे आ रहे हैं, गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कितना ड्रॉप होगा इसके अंदर? 1 ओम की रेजिस्टेंस है, और I2 करंट है इसके अंदर, तो 1 × I2, तो दैट विल बी +I2। डज इट मेक सेंस? और हम कहाँ पहुंच गए? ए पर पहुंच गए। हम ए पर पहुंच गए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। कैन वी सिंप्लीफाई इट? क्या हो जाएगा? बोलो जी। 2I1, 2I2 प्लस I2, 3I2, तो 2I1 प्लस 3I2, शैल आई से इट इज इक्वल टू 3। पहली वाली में मैंने क्या किया था? ABCA, हाँ, +6 माइनस दिस। ओ, इसमें तो 3 इसलिए आता है क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया था। ये ठीक होगी बात? नाउ कैन यू मेक द लूप इक्वेशन फॉर द थर्ड वन? लूप का नाम बताओ और उसकी इक्वेशन बनाओ। आपको समझ में आ गया ना? करंट की डायरेक्शन में जाते हैं रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल लूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो प्लस में लिखते हैं वैल्यू। ऐसे करके कर सकते हैं। बताओ क्या लूप बनाओ, उसे बोलो। ये लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं BCDAB ऑलरेडी लिखा हुआ है। करो, BCDAB, बोलो। B से C जाएंगे तो क्या होगा? in the direction of current. हाँ, तो क्या लिखें? -I1 × R1, -I1 × R1, R1 तो 4 है, तो क्या लिखें? Minus -4R1, 4I1. -4Y1, ठीक है, बढ़िया बात है। इसके बाद कहाँ जाएंगे अब? हम BC पहुंच चुके हैं। सी के बाद हमारा अगला पड़ाव क्या है? डी। सी से डी के बीच में यहां पर तो कोई पोटेंशियल लॉस नहीं हो रहा, तो सिर्फ बैटरी में होने वाला है। लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, क्या हो रहा है? वी आर लूजिंग पोटेंशियल, गेनिंग पोटेंशियल। सी से डी जाएंगे तो वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, एंड इट इज ए 3 वोल्ट बैटरी, तो क्या होगा? -3. -3। उसके बाद फिर प्लस I2 R3, राइट? R3 तो 1 है, तो कितना हो गया ये? +I2, समझ में आ रहा है? इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं अब? ए पर पहुंच चुके हैं, हमें तो बी पर जाना है, लेकिन तो क्या करूं? ए से बी जाएंगे क्या होगा? 6 वोल्ट की बैटरी है ये। टाइम लग रहा है इसके अंदर। 6 वोल्ट बढ़ जाएगा पोटेंशियल। 6 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो +6 लिख दें। और मिलके कितना बन गया ये? 0। 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई जी? I2 माइनस, या फिर 6 - 3, 3 इधर लग लूं, तो 3 इज इक्वल टू 4I1 - I2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इज इट फाइन? तो दीज आर द 3 इक्वेशंस वी मेड। दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो लूप लॉ से हम ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, लूप लॉ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब अननोन तो 2 ही हैं, तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। 2 इक्वेशन से सॉल्व करो, और तीसरे से वेरीफाई करो। 2 से सॉल्व करो, तीसरे से, या वट एवर कम्बिनेशन ऑफ देम यू कैन यूज फॉर योर सोल्यूशन टू गेट सम मैथमेटिकल एडवांटेज। यू कैन डू दैट, राइट? यू कैन डू दैट। बताओ कैसे करना चाहिए मुझे? जैसे मान लो मुझे पता है कि इन दोनों को अगर मैं यूज करूं तो आसान है ना। अगर मैं 1 और 3 को ऐड कर दूं, मुझे फायदा होगा। I2 - I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बार में सीधा मेरा I1 आ जाएगा। है, तो आई कैन डू इट, राइट? तो यू हैव टू अप्लाई योर स्मार्टनेस इन सॉल्विंग द इक्वेशंस। जैसे मैंने भी देखा, मुझे कुछ यहाँ लो हैंगिंग फ्रूट दिखाई दिया, मैंने कहा 1 + 3 अगर मैं कर दूं, क्या आ गया बोलो? बता सकते हो क्या आएगा 1 + 3? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ो। 6 is equal to 7I1. 6 इज इक्वल टू 7I1. 7I1, क्योंकि I2 और -I2 तो कैंसिल हो गए, इससे में I1 की वैल्यू मिल गई। वाह भाई वाह। I1 कितना हो गया? 6/7 एम्पियर।
ये वाला करंट हमें मिल गया, इसको लिख दूं मैं 6/7 एम्पियर. नाउ कैन आई फाइंड I2 ऑल्सो? इनमें से किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं. जैसे यहां से निकालूं, I2 कितना है? इट इज 3 - 3I1, राइट? I2 इज 3 - 3 into I1. I1 is 6/7. तो I2 कितना हो गया जी? कितना हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 LCM आ जाएगा. क्या आ जाएगा ये? 21 - 18. तो दिस इज 3/7 एम्पियर. I2 कितना आ गया हमारा? 3/7 एम्पियर. इसको लिख दें हम 3/7 एम्पियर. ठीक बात है. आई कैन वेरीफाई फ्रॉम एनी ऑफ दिस इक्वेशन. जैसे ये इक्वेशन हमने अभी यूज ही नहीं की, हमने 1 और 3 यूज की थी, उसके बाद 1 से दोबारा निकाल लिया था. इसमें वेरीफाई कर सकते हैं हम. देखो 2I1 + 3I2, 3 आना चाहिए. आ रहा है. 2 into I1. I1 is 6/7 plus 3I2. 3 into 3/7. Is it coming 3? This 12/7, this is 9/7. So 12 plus 9 is 21/7, which is equal to 3, right? Verified. ऐसे करके अपने रिजल्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो वेरीफाई इन वन ऑफ द लूप्स इन द फिगर इटसेल्फ. हम देखते हैं क्या यहाँ ये +6 हुआ, यहाँ पर -6/7 into 4. ऐसे करके हम कर सकते हैं, राइट? बट ये भी ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी. हाउ मच इज द करंट हेयर? यहाँ कितना करंट है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसे देंगे फिगर. ए सर्किट इज गिवन टू यू, द वैल्यूज ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स एंड द बैटरीज आर आल्सो गिवन टू यू. क्वेश्चन में होगा फाइंड द करंट इन द R2 रेजिस्टेंस. बताओ क्या आंसर होगा हमारा? फाइंड करंट इन R2, बस दैट इज द क्वेश्चन. बाकी कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ इतना पूछा, फाइंड करंट इन R2. क्या हो जाएगा? है जी? 9/7. R2. तो हम क्या इनको ऐड कर देंगे, 6/7 + 3/7, 9 by तो हो 7 जाएगा ampere. 9/7. मगर इसमें आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन बतानी चाहिए. 9/7 किस तरफ? तो क्या बोलोगे? C to A, नॉट A to C. ठीक है गाइस, सर्किट सॉल्व करना आ गया आपको, राइट? इस तरीके से हम अपने लॉज की हेल्प से KCL, KVL और ओम्स लॉ, इन तीनों की मदद से सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं. बढ़िया बात है जी. एनी क्वेश्चंस? राइट. ठीक है ध्रुव, समझ में आ गया, राइट? Yes, sir. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व सम सर्किट. तो आप ऐसे कुछ सर्किट सॉल्व करना, एक तो मैंने किया, राइट? आपको मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे सर्किट जो है, राइट? कोई निकालें हम? निकालें. लेट अस से JEE प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, KCL, KVL एप्लीकेशन. राइट, सम सर्किट विल बी गिवन. आई थिंक यहाँ पर कोई दिया हुआ है, ये थोड़े आसान से हैं. ये जैसे दिया हुआ है एक, ये तो ऐसा ही है ना कुछ जैसा हमने किया था. कैन वी सॉल्व इट? बताओ जस्ट. ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ सेटिंग अप इक्वेशन बताना है, राइट?
हैं, जल्दी से करेंगे, फिर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी करना है। बोलो, यहां से देखो इन्होंने I1 इस तरफ ले लिया। ऐसा क्यों लगा? इनको लगा ये बड़ी है ना, तो इसलिए करंट इधर जा सकता है। बट ये हम कुछ भी ले लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम गलत डायरेक्शन ले लें तो क्या होगा? आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, है, प्लीज लिसन। तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां हमने I1 करंट ले लिया। अब देखो यहां पर I1 है, यहां हमने I2 लिया है, तो ये I2 है। तो यहां कितना करंट हो जाएगा? I3 कितना हो जाएगा ये? I1 प्लस I2। डज इट मेक सेंस? राइट। इन पॉइंट्स के मैं नाम दे दूं, जंक्शन कौन से हैं? ए और बी। यहां पर तो ऑलरेडी लग गया, I1 प्लस I2 आया, I1 इधर गया, I2 हो गया। वी ऑलरेडी अप्लाइड दी KCL इन द फिगर इटसेल्फ। लेट दिस पॉइंट ए, लेट बी कॉल पॉइंट बी। नो, बी तो हमने वो लिया था, तो लेट दिस बी सी, राइट। एंड देन लेट दिस बी पॉइंट डी। बताओ, कोई लूप बताओ और उसकी वो किरचॉफ केवीएल लगाओ उसमें। बताओ लूप का नाम क्या लिखूं? 3 लूप बन रहे हैं ना इसमें। ACBA ACBA, चलो बोलो, लगाओ, केवीएल लगाओ। क्या बनेगा? ACC में जाएंगे तो क्या होगा? -8 -8। फिर यहां से आ जाएंगे तो I1 करंट है इसमें, I28 I1 माइनस या प्लस? -28 I1 minus -28 I1। और फिर यहां से आ जाएंगे तो -6 volt -6 इज इक्वल टू 0। 0 तो क्या हो गया जी? -8 -6 इज -40, एंड दैट इज इक्वल टू 28 I1। तो I1 कितना आ गया? minus -1/2 एम्पियर। 1/2 इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत बनी हुई है। इसमें करंट कैसा होगा? इस तरफ करंट होगा, ऐसे का। मगर हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हमें पता चल गया माइनस में। अब अगर पूछेंगे, ठीक है ना, कि भाई 8 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें करंट किस तरफ है, तो हम बोलेंगे पॉइंट सी से ए की तरफ है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। आर यू विद मी? राइट। इसमें करंट किस तरफ है? हम बोलेंगे बी से सी की तरफ, जबकि डायरेक्शन बनी है सी से बी, गलत बनी हुई है। मगर गलत से कुछ नहीं, आंसर नेगेटिव में आ गया, बस सही है। ठीक है, I1 आ गया। दूसरा लूप बताओ। 1 से 2 एक आंसर आ ही गया ऑलरेडी, ये तो आसान है। बोलो और क्या, कौन सा लूप बने? ABDA ABDA बोलो। आप बोलोगे शिवांश? ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, फिर डी पे जा रहे हैं, फिर ए पर आ रहे हैं। बोलो। ए से बी जा रहे हैं, राइट। क्या आएगा? 6 +6। plus 6 उसके बाद यहां पर I2 करंट है ये। वी आर गोइंग opposite to the direction of current, right? -54 I2 Why minus? We are going opposite to direction of current. We are going from here to here, right? We are going plus from B to D, not D to B. तो क्या हो जाएगा? plus 54 I2 +54 I2, +54 I2। ठीक बात है गाइस? ठीक है ध्रुव, राइट। उसके बाद यहां से यहां जा रहे हैं, plus 12 +12 इज इक्वल टू, 0 तो इससे I2 निकल जाएगा। इसको पूरे को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9 I2। 9 I2 plus 2 equal to 0 तो क्या बन गया? 9 I2 इज इक्वल टू -3। -3 I2 इज इक्वल टू
-1/3. -1/3, -1/3/9, -1/3 एम्पियर। तो ये भी डायरेक्शन गलत बनी हुई है। करंट इस तरफ नहीं है, करंट इस तरफ है। ठीक है। कैन वी वेरीफाई फ्रॉम दी थर्ड लूप? व्हाट इज द थर्ड लूप? द बिगर वन। बोलो। A C B D A. ACBDA। बोलो जी, क्वेश्चन क्या बनेगी? बोलो, शिवांश आप बोल रहे हो? बोलो। ACBDA. हाँ। -8, -8, -28 I1, -28 I1, +54 I2, +54 I2, +12 +12 = 0. इक्वल टू 0। ठीक बात है गाइस, ध्रुव ठीक है, फाइन। Yes, sir. ओके। इसको मैं 4 से तो डिवाइड कर ही सकता हूं। खैर यहां छोटा कर देता हूं, 12 - 8 तो 4 हो गया। तो 4 -28 I1 +54 I2 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें। 1 -7 I1 प्लस 4 से कटता नहीं ना, ये गलत कर रहा हूं मैं। ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, राइट? इट्स नॉट डिविजिबल बाई 4। हम वैल्यूज डाल के देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। 4 इंटू, सॉरी 4 माइनस, कितना है ये? 28 इंटू I1 विच इज -1/2 +54 इंटू I2 विच इज लाइक -1/3। इज इट कमिंग 0? ये 4 है, ये कितना है? दिस इज +14, राइट? +14. और ये कितना है? -18, राइट? -18. And it is coming 0, right? So that means our answers are correct. That means our answers are correct. So we have solved this circuit. तो आप देखें, किरचॉफ लॉ की मदद से हम आसानी से इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एक चीज और हमें आनी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में काम आएगी। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल में 0 मान लो। ठीक है जी। सपोज आई टेक VA इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। कैन यू टेल द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स? बताओ VC कितना हो गया? हाउ मच इज VC? -8 वोल्ट, है ना? अगर ये 0 है तो 8 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। आर यू विद मी? हाउ मच विल बी VB? VB क्या हो जाएगा? VB तो 0 वोल्ट है। VB कितना हो जाएगा? Six volt. 6 वोल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां से देख सकते हैं, ये 0 तो 6 है, और इधर से अगर देखें तो क्या होगा? -8 आया। उसके बाद आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8। यहां जाएंगे तो क्या होगा? 14 बढ़ जा रहा है. -28 I1, राइट? Hmm. -28 इंटू I1 वाज -1/2। तो कितना हो गया? -8 + -8 14 + 14, विच इज 6. लाइक 6। तो देख रहे हो आप, चाहे मैं यहां से जाऊं, चाहे मैं यहां से जाऊं, किसी भी रूट से जाऊं, आंसर तो सेम ही आना है। एक पॉइंट का तो एक ही पोटेंशियल हो सकता है बस। ठीक है। सारे पॉइंट के मिल गए पोटेंशियल। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट D? VD कितना है? देखो, यहां 0 था, यहां कितना है? -12। वही तो VD है। ये ठीक बात है। अगर ये -12 है तो फिर ये VB कितना हो गया? -12 -54 I2, राइट? आर यू विद मी? -12 -54 I2, बट I2 was how much? -1/3।
तो कितना हो गया, -12 प्लस 18, राइट, 54/3, which is like 6 volt, which is again the correct answer. I hope you got some friendship with this. How to find the potentials at various points, right? इस तरीके से गाइस हम किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस को किरचॉफ लॉ लगा के और वी को तीनों लॉ लगा के हम, और ये बात लगा के कि पोटेंशियल ड्रॉप कनेक्टिंग वायर में नहीं है, इन चार चीजों से हमने सर्किट सॉल्व किया। एक तो कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, और बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है या पोटेंशियल इंक्रीज कितना है, इक्वल टू दिस वैल्यू जो दी हुई है। और रजिस्टर में ओम्स लॉ, जंक्शन पे जंक्शन लॉ या केसीएल, और लूप पे लूप लॉ या केवीएल, इन सब की मदद से हमने सारे सर्किट सारी वैल्यू निकाल ली। बढ़िया जी, राइट। इट जस्ट मोर वर्क, राइट, वी हैव टू। अगर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता तो क्या होता, 3 4 5 इक्वेशन बन जाती। एंड सॉल्विंग 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन इज फाइन गाइस, बट सॉल्विंग 4 5 simultaneous equations, it becomes a pain. Solving 4 simultaneous equations, it becomes a pain, right, right. एक और तरीका है सर्किट सॉल्व करने का, अगर मैं पूरा लूप ना बनाऊं, जैसे अभी हमने देखा, हम कोई उसके गुलाम है क्या कि हमने ऐसे करना है, लूप बनाना है, उसकी भावना पकड़नी है हमने, राइट। अभी हमारे 2 अननोन थे, एक I1 एक I2, एक ऐड कर दिया था। क्यों भाई, ध्यान सुनना, 2 अननोन थे ना, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी थी। क्या ही अच्छा होगा अगर एक ही अननोन हो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। तो आप देखो, आप ऐसा करो, इस पॉइंट को मान लो जी 0 वोल्ट, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B वोल्ट। B माना था ना हमने, इसको B मान लेते हैं। आ रही बात समझ में, राइट। अब देखो क्या होगा, अब चलो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा यहां हमारा करंट कितना हो जाएगा, यहां से आएंगे तो -8, ये I1 है ना, -8 -28 I1, ऐसा ही है ना, -8 -28 I1 इज इक्वल टू B। ये ठीक बात है कि नहीं? तो I1 कितना हो गया, है जी, -28 I1 इज इक्वल टू B+8। I1 कितना हो गया, -B+8/28। आ रही है बात समझ में, राइट। हाँ, मगर ये मेथड यहां पर इनके बीच में कोई एक्चुअली, अच्छा, देखो मुझे B तो पता ही है, यहां से ये 0 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, राइट। ये 0 वोल्ट है तो 6 वोल्ट है, इसमें कोई ज्यादा करने का आसान नहीं है, तो आसान ही है। तो B को मैं 6 डाल दूं तो अपने आप ही आंसर आ गया मेरा I1। इसमें तो सिमिलर इक्वेशन वैसे भी नहीं बनी थी, राइट। तो दिस इज नॉट ए गुड कैंडिडेट फॉर व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, दैट विल एक्सप्लेन सम अदर क्वेश्चन, राइट। ये ठीक हो गया। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, लेट अस डू द व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने कुछ एप्लीकेशन देख ली किरचॉफ लॉ की, हाउ टू सॉल्व सर्किट, राइट। व्हाट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज गाइस, पता है आपको? फिर आपने पढ़ा है भी कि नहीं? हम्म। इसमें क्या है, 5 रजिस्टर हैं जी। इसमें क्या है, 5 रजिस्टर कैसे लगे हैं, एक तो हम ऐसे बना देते हैं जी, ऐसे। दिस इज ए टिपिकल वे टू मेक ए व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट्स से दिस R1, दिस इज R2, दिस इज R3। कुछ लोग इसको R2 लिख देते हैं, इसको R3, फिर इसको R4 लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। IFI, राइट, राइट।
इनके बीच में मान लीजिए बैटरी लगी है हमारी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रही बात? राइट। ये ई बोर्ड की बैटरी लगी है मान लीजिए। कुछ लोग इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना, कनेक्टिंग वायर्स का शेप थोड़ा बदला है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। ये R1 है, ये इसको R2 भी लिख सकते थे, इसको R3, इसको R4 लिख दो, इसको R5 लिख दो। ये बैटरी है। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सॉल्व करना है हमने, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर ये रेजिस्टेंस ना होती तो सर्किट कैसा होता? चार ही रेजिस्टेंस होती तब क्या होता? तब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान था। ठीक है जी। मान लो इसमें चार ही रेजिस्टेंस होती, ये बीच वाली रेजिस्टेंस को मैं हटा दूं, ध्यान से सुनने। अब क्या हो जाएगा ये? मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, क्यों नहीं? ये E है, इसमें कितना करंट हो जाएगा? अगर मैं इसको I1 करंट कहूं और इसको I2 करंट कहूं, तो I1 I2 की क्या वैल्यू होने वाली है? क्या वैल्यूज होने वाली है जी? मान लो मैं इसको 0 वोल्ट ले लूं, तो ये ई वोल्ट है, ये भी ई वोल्ट है, ये भी ई वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है ना? तो R1 R2 दोनों सीरीज में है, राइट? और इनको ई वोल्ट मिल रहा है। R3 R4 सीरीज में, और ये रिजल्टेंट दोनों पैरेलल में है। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हैं हम सर्किट की? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी R1 + R2। और ये वाली कितनी है? R3 plus R4. R4। और जब पैरेलल में होती है तो क्या होता है? जब दो रजिस्टर पैरेलल में होती है तो रिजल्टेंट क्या होती है? क्यों जी? मान लो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक R1 एक R2, इनका इक्विवेलेंट क्या होता है जी? इक्विवेलेंट क्या होता है इनका? ध्यान से सुनना है इस बात को। R1 plus R2 upon R1 R2. उल्टा कह रहे हो आप। R1 R1 R2 upon R1 plus R2. राइट राइट, वरना तो यूनिट्स मैच नहीं करेंगे। R1 R2 विल बी ओम स्क्वायर, एंड R1 + R2 सम तो ओम में, तो ओम स्क्वायर बाई ओम, ओम के यूनिट आ जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा R1 + R2 अपॉन R1 R2, तब क्या होगा? Ohm inverse. हाँ, तब तो ओम इनवर्स के यूनिट आ जाएंगे। तो इट कांट बी रेजिस्टेंस, राइट? 1/R, राइट? तो दैट्स करेक्ट, राइट? 1/R, तो R विल बी R1 R2 अपॉन R1, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा फिर, बोलो? इसमें R क्या हो जाएगी इक्विवेलेंट? R1 + R2 इंटू R3 + R4, ऐसा कुछ कह सकते थे, डिवाइडेड बाई R1 + R2 + R3 + R4। ऐसा इनका हो जाता अगर ये बीच की रेजिस्टेंस न लगी हुई होती, अगर ये बीच की रेजिस्टेंस न लगी हुई होती। राइट राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज के दो तरह के सवाल आते हैं जी। एक को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एक को क्या कहते हैं? सुनो होगा आपने, क्या कहते हैं उसको? इसको पढ़ो, क्या नाम है इसका? Balanced Wheatstone bridge. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा कब कहते हैं? व्हेन इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस? इफ द करंट इन R5 इज 0। ये बीच वाली रेजिस्टेंस है, उसमें करंट कितना है? 0। व्हेन द करंट इन द R5 इज 0, इट इज कॉल्ड ए
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. It is called a balanced Wheatstone bridge. It is called a balanced Wheatstone bridge, right? तो कंडीशन फॉर बैलेंस क्या है? क्या होना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि बैलेंस क्या है? कंडीशन फॉर बैलेंस क्या है? कंडीशन मालूम है किसी को? ये पढ़ा R1 होगा ना? upon R2 equal to R3 upon R4. है जी. R1 by R2 equal to R3 by R4. R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4. अगर ऐसा होगा तो R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगा. उस केस में जब करंट ही नहीं जा रहा तो मैं R5 को हटा सकता हूं, और फिर सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी पूरे की? ये वाली. तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस इज दी फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन, दिस इज द रेजिस्टेंस. तो फिर करंट कितना जाएगा इसके अंदर? ये वाला करंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी ई डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, है ना? ई डिवाइडेड बाय दिस मतलब ई इंटू R1+R2+R3+R4 डिवाइडेड बाई R1+R2 इंटू R3+R4. समझ में आया ना? राइट. अब सवाल यह कि कंडीशन आई कहां से? डू यू नो हाउ टू डिराइव इट? राइट. तो वो सीखना है हमने, राइट, कि कंडीशन आई कहां से. ठीक है ध्रुव, यू आर देयर? Yes, sir. ओके. तो इसको डिराइवेशन करनी है हमने, कंडीशन की डेरिवेशन. डिराइव दी कंडीशन, तभी तो समझ में आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज. यू हैव टू डिराइव दी कंडीशन. बोलो मुझे बताओ, किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कब होगा? किसी रेजिस्टेंस में जीरो करंट कब जाएगा? जब इसकी दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पे हो, है ना? अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी हो तो क्या होगा? आई कितना होता है? वी ए माइनस वी बी बाई आर. तो अगर वी ए माइनस वी बी जीरो हो जाएगा तो करंट तो जीरो ही हो जाएगा ना. हरी बात समझ में? राइट. तो एक काम करते हैं अपन, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम. इसको हटा के, हमारी इन दोनों के बीच में लगी ना रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं ए कह लूं, इस पॉइंट को बी कह लूं, मान लो. अगर ए और बी बराबर होंगे तो मैं बीच में रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? करंट तो जाएगा ही नहीं उसके अंदर. सुन रहे हो बात को ध्यान से? कैन आई फाइंड वी ए एंड वी बी? बोलो, कैन आई फाइंड वी ए वी बी? इस सर्किट में देखो क्या हो रहा है. इट्स ए नॉर्मल सीरीज सर्किट, राइट? इट इज ए नॉर्मल सीरीज सर्किट. नहीं, एक R3 एक R4 है और बीच में पॉइंट बी है. बात समझ में आ रही? तो बी पे पोटेंशियल बता सकते हैं हम क्या है. इसमें अगर मान लीजिए कोई करंट जा रहा है, हमारा I1 करंट जा रहा है इसके अंदर, I2 करंट जा रहा है, तो यहां कितना ड्रॉप है? I2R3. और यहां कितना ड्रॉप है? I2R4. क्यों जी? है जी. तो I2R3 प्लस I2R4 कितना है? इज इट नॉट इक्वल टू ई? एनी डाउट? एक इक्वेशन हो गई. तो फिर से हम I2 निकाल सकते हैं. I2 कितना हो गया? ई अपॉन R3+R4, राइट? ऐसे कह सकते हैं. ये तो I2 हो गया. अब बताओ वीबी कितनी हो जाएगी? वीबी कितनी हो जाएगी? ये 0 वोल्ट है, ये ई वोल्ट है, तो यहां से चलेंगे तो ये भी जीरो. तो वीबी कितना हो जाएगा? इज इट नॉट लाइक 0 + I2R4? जैसे अभी हम कहते हैं आई एम गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई गेन वोल्टेज. तो वीबी विल बी हाउ मच? I2 इंटू R4, मतलब ई इंटू R4. I2 इज ई अपॉन R3+R4, दैट इंटू R4. तो ER4/R3+R4. समझ में आती बात? कोई तकलीफ इसके अंदर? नहीं ना? दैट इज अवर वीबी. वीबी इज ER4/I3+I4. हम यहां से भी निकाल सकते थे. यहां से क्या आ जाएगी? E - I2R3, राइट?
तब भी सेम आंसर आएगा। देखो आप इधर से निकालें, क्या आ जाएगा? ई माइनस I2R3। I2R3 मतलब ER3 अपॉन R3 + R4। ये कितना हो गया जी? E इंटू R3 प्लस E इंटू R4 माइनस ER3 विच इज लाइक ER4 ओनली। ER4 अपॉन R3 + R4। अगेन द सेम थिंग, राइट? अगेन द सेम थिंग। तो कहने का मतलब हमने वी बी निकाल लिया, वी भी निकाल लिया। वी ए कितना हो जाएगा? वी ए के लिए मैं ये वाली बना लूं सर्किट, है ना? वी ए कितना हो जाएगा बोलो? इसमें I1 करंट कितना है? I1 करंट कितना है? E अपॉन R1 + R2। तो फिर वी ए कितना हो जाएगा बोलो? दिस इज जीरो, दिस इज I1 R2, तो इट विल बी 0 + I1 R2, तो इट विल सिंपली I1 R2। I1 ये तो कितना हो जाएगा? ER2 अपॉन R1 + R2। डज इट मेक सेंस? अगर नहीं समझ आया तो मुझे आराम से बताओ, यस नो। Yes. समझ में आ गया कि नहीं? Yes. Yes, ठीक है, sir. ऑल राइट। तो यह 2 पॉइंट पर निकालना आसान है, तो राइट। अब हमारी कंडीशन फॉर बैलेंस विस्टोर ब्रिज क्या होने वाली है? अगर मैं इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा दूं और वी और वी बी बराबर हो तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो बैलेंस की कंडीशन क्या है? वी ए इज इक्वल टू वी बी। बैलेंस की कंडीशन क्या है? वी ए इज इक्वल टू वी बी। बैलेंस क्या है जी? वी ए इज इक्वल टू वी बी। व्हाट डज इट मीन? ER2 अपॉन R1 + R2 इज इक्वल टू ER4 अपॉन R3 + R4। एनी डाउट अबाउट दिस? ई तो मैं काट दूं, तो बाकी क्या बचा? R2 अपॉन R1 + R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3 + R4। ऐसा हुआ कि नहीं? नेक्स्ट पेज पे ले जाओ इसको। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा छोटा कर दूं, थोड़ी स्पेस बन जाएगी। अच्छा, अगले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। वेट करो। ठीक है जी। तो क्या कंडीशन बन गई हमारी? R2 अपॉन, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं क्या बन जाएगा? R1 + R2 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 + R4 अपॉन R4। एनी डाउट? अगर मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड से तो कोई फर्क पड़ेगा? इफ टू थिंग्स आर इक्वल, देन यू सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम बोथ साइड, इट विल स्टिल बी सेम। तो ये क्या बन जाएगा? R1 + R2 / R2 -1 कितना हो जाएगा? विल इट नॉट इक्वल टू R1 / R2? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने क्या होगा? R3 + R4 -R4 अपॉन R4। R3 upon R4. R3 अपॉन R4। तो वी गॉट आवर कंडीशन, R1 / R2 इज इक्वल टू R3 / R4। दैट इज द कंडीशन फॉर ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। या ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 / R3 इज इक्वल टू R2 / R4। क्या फर्क पड़ता है उससे? एक ही बात है वो तो। बढ़िया बात है गाइस, यू अंडरस्टूड इट, राइट? तो दिस इज द कंडीशन फॉर ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा होगा तो फिर हम इसको बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। दैट इज द गेम। ऐसा होगा तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं गाइस। बढ़िया बात है।
यू वुड लाइक टू डू न्यूमेरिकल? बताओ. लेट्स से दिस 6 volt. Let's say this 6. Let's say this 3. Let's say this 8. And let's say this X. तो क्वेश्चन आपको आएगा, let's say this 2 ohm. What is the value of X? So that no current flows in the 2 ohm resistor. बोलो क्या आंसर हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं हम? 8/6 इज इक्वल टू X/3, ऐसा लिख सकते हैं. Four. कितना 4. हो गया? X इक्वल टू 4 ohm. हाँ, ये इससे आधा है, तो इससे आधा हो जाएगा तो बात बन जाएगी. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. उसके बाद अगर मैं कहूं कि फाइंड suppose this is 0 volt. Let's say this point A, this point is B, this point is C, this point is D. Find V, A, VB, VC, VD, and also find the currents. Find the currents in all the resistors. And can we do it quickly? Currents in all the resistors. क्या हो जाएगा जी? बोलो. हम क्या कहेंगे? ये तो बैलेंस है, तो 2 में तो कुछ है ही नहीं, इसको हटा दे. तो सर्किट कैसा बना देंगे हम? This 6 volt. This is 6 ohm. This is 3 ohm. This is 8 ohm. This is 4 ohm. This is 0 volt. This is 6 volt, right? VA कितना हो गया? 6 volt, right? How much is VD? फटाफट. VD कितना है? ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, गुड कंडक्टिंग वायर से. इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? बोलो भाई, VD कितना है? This is 0 volt. They are all equipotential. Like these are all equipotential. This is 0 volt, this was 6 volt. And these are all equipotential, so this was 6 volt. How much is VD? You are not there. 0. हाँ, तो बोलना तो पड़ेगा ना. 0 volt, right? How about these 2 points? ये पॉइंट कितना था? B था और ये C था. इनकी पोटेंशियल कितनी हो जाएंगी? बोलो. इसमें करंट कितना जाएगा? I1 कितना होगा? पहले I1 निकाल ले. बोलो. देखो, वैसे भी सेम करंट में हमारा ये पोटेंशियल रेशियो क्या हो जाती है? 6:3. रेजिस्टेंस की रेशियो में पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, मतलब 2:1. हाँ. और 6 इसमें डिवाइड हो रहा है 2:1 में. तो 6 के अगर मैं 2:1 पार्ट में करूंगा तो 2 पार्ट क्या आएंगे? 4 and 2. 4 and 2. इसका मतलब इसमें 2 का ड्रॉप है, इसमें 4 का ड्रॉप है. तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया? इसमें 2 का ड्रॉप है, जबकि ये 0 है.
तो 0 + 2 वीबी कितना हो गया? 2. 2 वोल्ट। ऐसे भी कर सकते थे हम। या फिर मैं I1 निकाल लूं। I1 कितना है? 6 + 3 = 9। 6/9, राइट? 2/3. 2/3 एम्पियर। तो फिर इसमें ड्रॉप कितना हो गया? 2/3 × 3, तो 2 वोल्ट 2. का ड्रॉप हो गया, वैसे भी आ गया। तो ठीक है। वीसी कितना आ जाएगा बोलो? ठीक है ध्रुव, समझ में आ रही बात है? Yes, sir. वीसी कितना आ जाएगा बोलो? यू कैन डू सेम थिंग। 2 8 इज टू volt. 4 मीन्स 2 is to 1 का ड्रॉप है अभी। तो यहां भी 2 वोल्ट का ड्रॉप है। तो ये कितना हो गया? ये भी 2 वोल्ट हो गया। दोनों आंसर बराबर आने ही थे, क्योंकि यही तो कंडीशन थी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि दोनों सेम है ये। तो सारे आ गए हमारे। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट, राइट? करंट भी सारे आ गए। इसमें करंट कितना आ गया? 6/9 विच इज 2/3। इसमें करंट कितना आ गया? I2। 6/12, राइट? 1/2 एम्पियर। टोटल करंट यहां कितना आ गया? ये 2/3, ये 1/2, है ना? जंक्शन लॉ। यहां से जाएगा वही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम यहां पर होना चाहिए। या फिर यहां पर देखो, इन दोनों जुड़ के यहां पर आ जाएंगे। 2/3 + 1/2, ये कितना होता है? 6 एलसीएम ले लें। 7/6. 4 + 3, 7/6 एम्पियर करंट है इसके अंदर। वेरीफाई कर सकते हैं। ये 9 ओम है, ये 12 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया यार? 9 × 12/9 + 12, है ना? 108/21, राइट? इसको हम काट सकते हैं। किससे कटेगा? 3 से घट ही जाएगा, 3 से ही घटेगा। 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 1, 36/7, राइट? तो फिर हमारी 6 वोल्ट की बैटरी थी, और 36/7 की रेजिस्टेंस, तो आई कितना आ जाएगा? V/R। 6 / 36/7, which is like 6 × 7/36, which is like 7/6 एम्पियर, which is again correct, right? It gives the same value. तो we solved a balanced Wheatstone bridge. We solved a balanced Wheatstone bridge. ठीक है। इसमें एक बात कई बार आती है कि हम यहां पर 2 ओम लगा दें रेजिस्टेंस, बैटरी को और बीच वाले रेजिस्टेंस को फ्लिप कर दें। वी कैन फ्लिप, ये ध्यान से सुन रहे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। वी कैन फ्लिप R5 and the battery, and it is still a Wheatstone bridge. देखो, ये हमारा ऐसा था। This was R1, this was R2, this was R3, this was R4। ये बीच में मैं बैटरी लगा दूं, बीच में मैं बैटरी लगा दूं, और यहां पर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, अभी भी एक Wheatstone bridge बन गया है। कैन यू सी दैट? है जी। अब ये पॉइंट ए हो गया जब पॉजिटिव वाला, ये पॉइंट हमारा नेगेटिव वाला बी हो गया, ये पॉइंट हमारे सी और डी हो गए, और ये R5 कहाँ लगी है? सी और डी के बीच में। कैन आई रीड्रॉ इट? आई कैन रीड्रॉ इट, राइट? आई कैन मेक ए बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं ए निकालूं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बी निकालूं। ध्यान से देखना है इसको भैया। ये पोर्शन बन गया। अब ए से दो रास्ते जा रहे हैं। एक R1 जो कि सी की तरफ, सी पे खत्म होगा, और एक R2 जो कि, ये मुझे क्या लिखना चाहिए था, एक मिनट, ये तो डी लिखना चाहिए था ना, और R2 जो कि डी की तरफ खत्म हो रहा है, राइट? और सी से फिर
बी के सी और बी के बीच में R2 है। एक मिनट, मैं इसको R3 देता हूँ, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। सी से बी के बीच में R3 है, और डी से बी के बीच में, ये डी था, डी से के बीच में R4 है, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। और डी और सी के बीच में R5 है। तो आप देख रहे हो पावर ऑफ रीड्रॉइंग द सर्किट। नाउ आई सी ए फेमिलियर स्ट्रक्चर। नाउ आई सी ए, आईज, आवर आईज सी ए फेमिलियर स्ट्रक्चर। इसको देख के शायद आईज को इतना ना लगे कि ये वही चीज है, मगर अब तो ये बन गई इस तरीके के। आपको समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज। इज इट ए बैलेंस व्हीट? देखो, पहले R1/R3 R2/R4 था, या R1/R2 R3/5 अभी वही है। तो अगर बैलेंस था ये भी, तो बैलेंस ही रहेगा अगर मैं बैटरी को और आईफर को फ्लिप कर दूं तो इट विल स्टिल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ध्रुव, राइट? Yes, sir. तो दिस अबाउट द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वन लास्ट पॉइंट, another way which is very common nowadays to make the Wheatstone bridge। ये तो सबको दिखाई देता है, ये वाला कि ये Wheatstone bridge है, राइट? इसको भी आपने देख लिया कि ये Wheatstone bridge है, राइट? अब है ना, दोबारा देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि वो तो Wheatstone bridge है। हरी बात समझे? दैट विल बी योर सक्सेस। आप पहचान लोगे तो सॉल्व कर लोगे इसको। नहीं पहचानो, सोचोगे पता नहीं क्या है, बीच में रेजिस्टेंस लगा रहे, बैटरी लगा रखी है, इतने सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं साथ में, कैसे सॉल्व करूँ उसको, right? Then you will try to solve it with Kirchhoff's laws. You can do it, but you can identify a Wheatstone bridge and it satisfies the condition of balance. Then it becomes pretty easy, right? एक और तरीके से बनाते हैं Wheatstone bridge, आजकल बहुत कॉमन चल रहा है। आजकल क्या मतलब, कई साल से चल रहा है। ऐसे बनाते हैं जी, देखो, तीन रेजिस्टेंस आपको दिखा देंगे सीरीज में से देखने में। ये मान लीजिए हमारी एक रेजिस्टेंस है, ये हमारी मान लीजिए दूसरी रेजिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, आपको इनके बीच में एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इनके बीच में यहां से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ऐसे लगा देंगे जी। ये पॉइंट अपने ए और बी हैं, जिनके बीच में बैटरी लगी है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ए व्हीटस्टोन ब्रिज? कैन यू आइडेंटिफाई व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो, यहां से अगर करंट जाएगा तो कहां जाएगा? एक इधर जाएगा, इधर जाएगा। लेट मी कॉल इट R2। यहां से जो करंट, अगर मैं इसको बैटरी को रिवर्स कर दूं तो करंट यहां से जाएगा, तो दो रास्ते में जाएगा, एक R3, इसको मैं R4 लिख दूं मान लो, और ये बीच वाली जो थी ये R5 है, ये R5 है। कैन यू सी इट्स ए व्हीटस्टोन ब्रिज? आई कैन नेम सम पॉइंट्स, आई कैन नेम सम पॉइंट्स। ये ए है, ये बी है, इसको मैं मालूम है डी नाम रख दूं, इसको इसको सी नाम रख दूं, और इसको डी नाम रख दूं। ये जंक्शन है ना सारे, सी और डी। कैन आई ड्रॉ इट नाउ? कैन आई रीड्रॉ इट? इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने में रीड्रॉइंग की बड़ी वैल्यू है जी। रीड्रॉइंग से क्या होता है, हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। इस फॉर्म में पता चल रहा है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, पहचान में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं ये ए निकालूं जी, ये वाला पॉइंट ए है। ए से दो रास्ते जा रहे हैं, एक R1 जो सी तक जा रहा है, और एक R2, ऐसे करंट जाएगा जो डी तक जा रहा है। सी और डी के बीच में R5 लगी हुई है, देख रहे हो आप, ये डी पॉइंट है। सी और डी के बीच में R5 लगा दूं, फिर सी से बी और डी से भी बी जुड़ा हुआ है। डी से बी के बीच में क्या लगा है, बोलो? डी से बीच में कौन सी रेजिस्टेंस लगी है, नाम बताओ? और सी से बी के बीच में कौन सी लगी हुई है?
दिख रहा है? सी से बीच में कौन सी लगी हुई है? R4। R4। B से D में R3। बी से डी में R3, थोड़े उल्टे लिख दिए मैंने नाम, राइट? मुझे इसको R3 लिखना चाहिए था, सी से बी वाले को। और से क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो, नाउ यू कैन सी इट बीट्स ऑन पिच। तो अगर R1/R2 R4/R3 के बराबर है तो R5 में कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है ध्रुव, ध्यान से देखा? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आजकल, जिसमें थोड़ा आपको पहचानने में, पर ये ज्यादा नहीं है, ये 2-3 फॉर्म ही है जैसे हमने की ना अभी, बस यही एक पॉपुलर फॉर्म है, राइट? ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का तो हमें पता चल गया। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट करके काम खत्म करें। मुझे बताओ, ये सब ओम में है। बस लास्ट पॉइंट करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी कैसे करेंगे हम? इसका मतलब क्या है? अगर इनके बीच में यहां पर मैं एक बैटरी लगा दूं, ऐसा सोच सकता हूं मैं, तो कैसे करंट जाएंगे? ऐसे इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे? बोलो। ये पूरा का पूरा मुझे मालूम है कितना है ये। हाउ मच इज दिस रेजिस्टेंस? इट्स ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? तो ये तो भी जाएगा नहीं, तो कितना हो गया ये? 6 ये 3 ये, ऐसा हो गया। तो सर्किट कैसा बन गया ये? एक 6 ओम ये है, एक 3 ओम ये है, ये 6 ओम है ये वाली भी, इन दोनों को मिला के, और ये वाली भी 3 ओम है। ध्रुव, समझ में आ रही बात है? हाँ या ना? तो दीज आर, कैन यू सी दैट? दीज आर 4 resistors in parallel like this, right? नो? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ कैसे करेंगे हम? क्या हो जाएगा आंसर इनका? क्या हो जाएगा? देखो, 2 रेजिस्टर जब इक्वल होती हैं, या फिर इसको मैं कर लूं, 6 और 3 मिलाए क्या होने वाला है? 2। 2 को सॉल्व कर लें पहले। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6 × 3/6 + 3, 2 ohm. 18/9, 2 ओम। इन दोनों का मिला क्या हो जाएगा? 2 ohm. तो दो 2 ओम पैरेलल में हो गई, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? 1 ohm. 1 ओम। इसका आंसर है 1 ओम। है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को पूरे को सीरीज पैरेलल में जोड़ा जा सकता है, अगर खासतौर से बैलेंस्ड हो तो। तब तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसकी पूरी की डिस्टेंस निकाल लें। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 6 है, ये 3 है, तो पूरे को 2 ओम कर लेते। तो 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, इनको ऐसे कर लेते। ऐसे भी कर सकते थे।
आई होप यू आर इन गुड शेप, राइट। और क्या पढ़ना था आपने, यही कह रहे थे ना आज आप, व्हीटस्टोन ब्रिज और केसीएल और केबीएल, राइट। आई विल गिव यू से फ्यू क्वेश्चंस। हमने भी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं किया है। अनबैलेंस ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ सॉल्व करने के तरीके हैं, लेकिन उन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व करने की जरूरत है। केसीएल केवीएल से ही अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी आज तो नहीं करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट में भेज दूंगा, आप एक करके देखना। ट्राई टू सॉल्व एन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ बाय मेकिंग लूप्स। अनबैलेंस वो तो सॉल्व कर सकते हैं ना लूप से। अनबैलेंस क्या सॉल्व करेंगे, मान लो आपको ये दे दूं 6 वोल्ट है, ये मालूम मैं आपको दे दूं 6 ओम, ये दे दूं 3 ओम, इसको दे दूं 3 ओम, इसको दे दूं 6 ओम मान लो, ये बीच में 2 ओम। कैन वी सॉल्व इट? अनबैलेंस है नहीं, 6/3 is 2, 3/6 is 1/2, तो इट्स एन अनबैलेंस ब्रिज। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से मैं इधर से ले लो I1 करंट, तो यहां पर कुछ I2 करंट ले लो, यहां कितना हो गया I1 + I2, आ रही बात समझ में। यहां पर कुछ I3 ले लो, तो यहां पर कितना हो जाएगा इसमें, है ना। लूप नोट्स में तो हम केसीएल लगा लेंगे, इधर से I2 इधर से I3, यहां कितना हो गया I2 + I3, यहां पर कितना हो जाएगा, I1 आ रहा था I3 से चले गया, तो यहां कितना आ गया I1 minus I3. I1 - I3, और फिर यहां कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम I1 - I3 + I2 + I3 + I3 मैंने ऐसे कट गया I1 + I2, विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो वी कैन वेरीफाई आवर वैल्यूज विद इन दिस थिंग, राइट। अब कितने अननोन है हमारे पास, कितने अननोन है, 3 अननोन है जी, I1 I2 I3, तो मुझे 3 लूप लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 लूप बनाने की कंडीशन क्या है, कोई रेजिस्टेंस छूटनी नहीं चाहिए और कोई बैटरी छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना है बात। लूप बनाने का क्या वो है प्रिंसिपल, अगर कोई रेजिस्टेंस छूट जाएगी तो वो कैसे आएगी, मैथ 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 कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, हरी बात समझ में, राइट। तो 3 लूप कैसे बनाने हैं, एक लूप कम से कम बैटरी हो, एक लूप ये बना लूं मैं, बाकी 2 लूप मैं ये बना सकता हूँ, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, ऐसा भी बना सकते हैं। या फिर एक लूप ऐसा बना लूं, एक ऐसा बना लूं, एक सिर्फ ऐसा बना लूं, कैसे भी आप कर लो, सो मेनी लूप्स आर मेकिंग ना। एक लूप ये बन रहा है, एक यूप ये बन रहा है, एक यूप ये, अगर मैं ये तीनों बना लूं तो सॉल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि बैटरी तो छूट ही गई, तो आपका सोल्यूशन आएगा ही नहीं। आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली। तो इसकी इक्वेशन बना के और I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी की है, एक बार निकल जाएगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6/I1 + I2। डज इट मेक सेंस, ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे 6 ना भी दिया होता, सिर्फ ये दिया होता और बोला होता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओ, तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी बैटरी लगा देता, कितने भी वोल्ट की, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कट जाने वाली है, आंसर से 6 से बदलेगा ही नहीं आंसर। 6 की जगह मैं 10 भी ले लूँ, 100 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, आर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेट्स स्टॉप हेयर, ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।